Good morning to all. We have started chapter industries. In this, we will major focus on important points, but we'll read out each and everything in that. Yes, industries we have seen कि जो industries है to make a useful product from the primary and natural product जिसमें जहाँ पे बनते हैं those are industries. Industrial revolution के बारे में हमने पढ़ा that it started in 18th century from the very first place, that is your Great Britain. Then we came to that India was not an industrial nation at the time of independence. This we have seen कि independence के time पे India was not an industrial nation, but with the time we progressed in that sector also. Then industry, what is it? A productive economic activity concerned with the processing of raw material and manufacture of goods in factories. This is the exact definition which you can write. There are different kinds of raw materials. Some we got from nature like crops and all, some are others, and those products which we got from nature are primary products. Then we process them and change into a useful product, that are your secondary products. This we have seen. This process of making primary products into useful secondary product is called manufacturing, and manufacturing comes under your secondary activity. Then next topic we have seen is stages of production in an industry, कि अगर हमें कोई भी यूज़फुल प्रोडक्ट बनाना हो तो कौन सी स्टेजेस से उसे होके गुजरना पड़ता है. Here we have seen an example of chocolate, and those 3 stages are your obtaining the raw material, then processing it into a finished good, then its distribution. These are the 3 basic stages of production. Then we classified industries into 3 on the basis of 3 things. First, on the basis of size we categorized them, then on the basis of raw material, then it is an ownership. Raw material is not so important, but still we will read that out. Yes, on the basis of size we have seen there are further 3 types of industries, that is your cottage industry, small scale industry and large scale industry. साइज़ के बेसिस पे हम कैसे देख रहे हैं कि हमने उस इंडस्ट्री में कितना इन्वेस्ट किया है, कितने नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो हैं वो एम्प्लॉयड है और कितनी प्रोडक्शन है. दीज 3 थिंग्स आर देयर इन साइज़ ऑफ इंडस्ट्रीज़. कॉटेज इंडस्ट्रीज़ वो हैं जो लोग घरों में ही चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं. हेयर आर सम एग्जांपल्स: पोट्री, बास्केट्स, टेक्सटाइल्स. मोस्टली ये जो स्किल्स हैं, जो भी ये चीज़ें घरों पे बनती हैं, दीज आर जनरली हेरिडेटरी. और जो ये क्राफ्टमैन्स हैं इनको हम आर्टिसंस भी बोलते हैं. इंडियन जो आर्टिसंस हैं वो फेमस है अपने ट्रेडिशनल क्राफ्ट के लिए, जैसे वीविंग हो गया, एम्ब्रॉयडरी हो गया. इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स आर हाईली अप्रिशिएटेड इन द वेस्ट. ये वेस्ट की तरफ बहुत ज़्यादा, लाइक यूरोप कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हमारा जो इंडियन क्राफ्ट है उसको अप्रिसिएशन मिलती है. देन वी हैव सीन अ केस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, जिसमें हमें कुछ एक्सटर्नल लेबर की भी ज़रूरत पड़ती है. हम आसपास के लोगों को काम देते हैं. यहाँ पे इट इज़ अ पावर ड्रिवन मशीनरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. यूज़ करते हैं मशीनरी को भी, लेकिन मोस्ट ऑफ द वर्क जो है वो लेबर के लोगों के द्वारा ही किया जाता है. एज़ कम्पेयर टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, दिस इंडस्ट्री एम्प्लॉय स्मॉलर नंबर ऑफ वर्कर्स एंड कैपिटल्स. आपको साथ में पिक्चर के साथ यू कैन ईजीली गेस कि कैसी इंडस्ट्रीज़ की यहाँ पे बात हो रही है. These industries play a very important role in the developing countries since they provide employment to a large number of people. ऐसी कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की एग्जांपल्स इट कैन बी आस्क्ड. कौन कौन सी हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, सिरेमिक हो गया, टॉयज़, लेदर गुड्स, यूटेंसिल्स, फर्नीचर. दीज काइंड ऑफ आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़. Then we moved to large scale industries. In this, what we have seen is we need huge capital and investment in these kind of industries, employ thousands of workers and use power driven heavy machinery. ऐसी इंडस्ट्रीज़ में मैक्सिमम जो है मशीनरी यूज़ की जाती है. रॉ मटेरियल हम बाहर से लेते हैं, उसको प्रोडक्ट बना के ऑल ओवर कंट्री और बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट करते हैं. प्रोडक्शन इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड. देयर आर सेपरेट डिपार्टमेंट्स फॉर डिफरेंट ऑपरेशन. हर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट्स हैं इन इंडस्ट्रीज़ में. ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो जो डिपार्टमेंट्स हैं वो फंक्शनल मैनेजर के द्वारा हेड किए जाते हैं. These industries usually make primary products that are used by other industries. ये जो लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रीज़ हैं ये प्राइमरी प्रोडक्ट्स को ही क्रिएट करती है. प्राइमरी प्रोडक्ट्स लाइक कि कार बनाने वाली कंपनी है, उनको टूल्स वगैरह चाहिए, छोटे छोटे, ये आप जो भी कह लो, नेल्स एंड ऑल्स, एलुमिनियम की शीट्स हो गई. ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को क्या है सामान प्रोवाइड करती हैं.
These industries require very good means of transport services to transport their products to various part of the country. इनके पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना भी बहुत अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है टू ट्रांसपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स, क्योंकि मेनली जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं दैट आर बिग इन साइज. Some of the examples of large scale industries are iron and steel, textile, aluminium, cement, petrochemicals, transport equipment, etc. Then we came to know about on the basis of raw material हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ को. 5 टाइप्स में हमने क्लासीफाई किया है. फर्स्ट इज़ योर एग्रो बेस्ड. ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें हम जो अपना रॉ मटेरियल है वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर से ऑब्टेन करते हैं, लाइक कॉटन, जूट, शुगर, फूड प्रोसेसिंग. शुगर बनाने के लिए यू नीड शुगर केन जो आपको डायरेक्टली जो है फार्म्स से मिलता है. सेकेंड इज़ योर मिनरल बेस्ड, जिसमें हमारा जो रॉ मटेरियल है वो हम मिनरल्स से लेते हैं, ओर्स को लेते हैं, उसमें से बाद में हम फाइनली एक एक करके मिनरल बनाते हैं, मेटल. थर्ड वॉज योर पेस्टोरल बेस्ड. पेस्टोरल बेस्ड में जब एनिमल्स की स्किन को लेके या किसी भी चीज़ को लेके हम प्रोसेस करते हैं इन चीज़ों को. लेदर गुड्स हो गए, वुलन, टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स, फाइन, जिसमें एनिमल्स का यूज़ हो. मैराइन बेस्ड में हम एक्वेटिक एनिमल्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं या उनसे ले रहे हैं. फॉरेस्ट बेस्ड हो गई, जहाँ से हमारा जो सारा सामान है वो कहाँ से आ रहा है, फॉरेस्ट से आ रहा है. देन this is new topic for today, that is on the basis of ownership. On the basis of ownership we have classified industries into 4 types. First is your public industry, second is your private industry, third is your joint, fourth is your cooperative. Let's see in public sector industries. Public sector industries are owned and managed by the central or state governments or their agencies. पब्लिक हेयर स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट. ये जो सारी इंडस्ट्रीज़ हैं ये किनके द्वारा चलाई जा रही हैं, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद चला रही है या स्टेट गवर्नमेंट चला रही है या उनकी एजेंसीज. गवर्नमेंट ऑन्स मोस्ट ऑफ द हैवी इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील, एयरक्राफ्ट, ऑयल एक्सेट्रा. जो मेजर हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं वो गवर्नमेंट ही ऑन करती है. दे आर कॉल्ड पब्लिक सेक्टर बिकॉज द इंटायर नेशन और द पब्लिक इन्वेस्ट्स इन देम थ्रू बॉन्ड्स एंड शेयर. ये पब्लिक सेक्टर है बिकॉज पूरा का पूरा नेशन है जो पब्लिक है इसमें इन्वेस्ट करती है बॉन्ड्स एंड शेयर्स लेके. सम एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, एंड दुर्गापुर स्टील प्लांट फॉल इनटू दिस category. In India, we see a government of India undertaking written in the notices and advertisements of these industries. अगर ऐसी कोई इंडस्ट्रीज़ हैं इनके जो नोटिसेस हैं, इनके जो भी चीज़ें हैं उनके ऊपर यू विल सी रिटन दिस अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग. Second type of industries under ownership, on the basis of ownership, are your private sector industries. Private sector industries are owned by resourceful individuals who have enough funds to invest in their industries. ये वो इंडिविजुअल्स के द्वारा रन की जाती हैं जिनके पास काफ़ी पैसा है कि वो इन्वेस्ट कर सके इंडस्ट्रीज़ में. द इंडस्ट्रीज़ कैन बी owned एंड मैनेज्ड बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. या तो सिर्फ एक ही पर्सन चला सकता है या 2-3 मतलब पार्टनरशिप में ये लोग चला सकते हैं ऐसी इंडस्ट्रीज़ को. सम इम्पॉर्टेंट नेम्स इन द प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ आर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ऑफ अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी आई थिंक, हाँ जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है. All these private enterprises are companies. Private companies further are of 2 types. First is your private limited, second is your public limited. A small group of individuals own the private limited companies while a large group of individuals or the public own the public limited companies. अगर थोड़े से लोग ही उस इंडस्ट्री को चला रहे हैं दैट कम्स अंडर प्राइवेट लिमिटेड. अगर उसमें ज़्यादा लोग इंक्लूडेड हैं दैट कम्स अंडर योर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज. थर्ड इंडस्ट्री इज़ योर जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज. जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर owned and managed jointly by private companies and government agencies. फर्स्ट हमने देखी पब्लिक, जो सारा का सारा कौन चला रही थी, गवर्नमेंट. सेकंड हमने देखी प्राइवेट इंडस्ट्री जो पूरी की पूरी किसी इंडिविजुअल के हाथ में थी.
या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के हाथ में। थर्ड, वी आर सीइंग दोज इंडस्ट्रीज़ जिसको गवर्नमेंट भी हैंडल कर रही है और प्राइवेट कंपनीज भी हैंडल कर रही हैं। प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन मार्केट्स। बोथ द पार्टनर शेयर द प्रॉफिट। पार्टनर यहाँ पे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट की बात हो रही है। ऑयल इंडिया लिमिटेड, गुजरात अल्कलीज एंड मारुति उद्योग लिमिटेड आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। मारुति उद्योग इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द सुजुकी कंपनी ऑफ जापान। जो मारुति उद्योग है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है और किसकी है? जापान की एक सुजुकी कंपनी है, उनकी है। सेवरल यूनिट्स ऑफ द टेक्सटाइल एंड केमिकल सेक्टर्स आर ऑल्सो इन दिस कैटेगरी। कुछ टेक्सटाइल और केमिकल इंडस्ट्रीज़ भी हैं जो इस कैटेगरी के अंदर, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के अंदर फॉल करती हैं। Then we have cooperative sector industries. Cooperative sector industries are owned and managed by a group of people who work from their own cooperative society. Cooperative sector industries वो हैं जो group of people बनाते हैं, जो अपनी ही society अलग से create करते हैं। They work together not only to make profit but at the same time provide employment opportunities to the people and for the welfare of the community. ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती बल्कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करती हैं, लोगों की भलाई, कम्युनिटी की भलाई के लिए ये काम करती हैं। दे आर जनरली प्रोड्यूसर्स ऑफ रॉ मटीरियल। ये रॉ मटीरियल को जनरली प्रोड्यूस करती हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सच इंडस्ट्रीज आर sugar mills, dairy cooperatives and the handloom industry. Amul, Anand Cooperative Milk Producers Union Limited and KRIBHCO, Krishak Bharti Cooperative Limited are some examples of the cooperative sector industries. So these are the 4 industries which are on the basis of ownership. फर्स्ट हमने देखा जो पूरी की पूरी गवर्नमेंट के हाथ में है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़। सेकंड वी हैव सीन प्राइवेट, जो किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के हाथ में है। थर्ड वी हैव सीन जॉइंट सेक्टर, जिसमें गवर्नमेंट का भी हाथ है और कोई प्राइवेट कंपनीज का भी बीच में शेयर है। फोर्थ कोऑपरेटिव सेक्टर्स, जो कम्युनिटी की भलाई के लिए या रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करती हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। दीज आर कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल अमूल। Then we are having our practice zone 1 that we will surely do after the chapter when we will finish. Thank you so much.